پر بھی ہے، معین الدین کے سر پر بھی ہے۔ جب یہ منظر بریلی کے قلندر نے دیکھا تو پکار اٹھے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ وہ غوث اعظم جو عالم ارواح میں بھی ولی ہیں۔ کون غوث اعظم جو ماں کے شکم کے اندر بھی ولی ہیں؟ کون غوث اعظم جو دنیا کے اندر آئے تو بچپنے کے عالم میں بھی ولی ہیں؟ وہ غوث اعظم جب حضرت اویس قرنی کے لیے مصطفیٰ پیارے نے اپنا جبہ بھیجا، جب حضرت علی نے اس جبے کو اویس قرنی کے پاس پیش کیا اور کہا تھا اے اویس، لے مصطفیٰ پیارے نے جبہ دیا ہے، اور کہا تھا میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو پہننے کے بعد امت کے لیے دعا کی اور کہا پروردگار میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر کو اٹھا لے، میں نے تیرے محبوب کی امت کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیا ہے۔ پھر کہا تھا مولا میں راضی نہیں اور امت کو بخش۔ آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر کو اٹھا لے، میں نے تیرے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ اویس کہتے ہیں مولا میں پھر بھی راضی نہیں، اے پروردگار عالم اور امت کو بخش۔ آواز آتی ہے اویس اب سجدے سے سر کو اٹھا لے، آدھی امت میں نے تیری دعا سے بخشی ہے، آدھی امت عبد القادر کی دعا سے بخشیں گے۔ حضرت اویس عرض کرتے ہیں مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ تو آواز آئی اویس عبد القادر میرے محبوب کی امت میں ایک نواسا پیدا ہوگا، جس طرح میں نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں بے مثال بنایا ہے، اسی طرح عبد القادر کو تمام ولیوں میں بے مثال بنایا ہے۔ یہ عبد القادر کی ذات ہے، یہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ حضور غوث اعظم اللہ اکبر بچپنے کا عالم ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر میں کھیلنے کے لیے جاتا تو آواز آتی عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن گائے کی پونچھ پکڑ کر کے ہلایا، ہلانے کے بعد گائے نے بزبان حال کہا اے عبد القادر تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ تو مجھے ستائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی سہمے ہوئے، ماں کے پاس تشریف لائے، ماں کے پاس بیٹھے ہیں سہمے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ اپنی ماں کی گود میں حاصل کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، بچپنے کا عالم ہے۔ باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے امام کے پاس لے کر کے گئے اور کہا تھا امام صاحب ہمارے بیٹے کو بسم اللہ خوانی کروا دو۔ امام صاحب نے کہا تھا بیٹے عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عبد القادر جیلانی نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، یہاں تک کہ 17 پارے حفظ سنا دیے۔ امام صاحب کہتے ہیں اے ابو صالح تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بیٹے کو بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے آئے ہو، یہ تو 17 پاروں کا حافظ ہے، اس نے کہاں حفظ کیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کے والد کہتے ہیں اے امام صاحب آپ اسی عبد القادر سے پوچھ لو اس نے کہاں یہ 17 پارے حفظ کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کے استاد کہتے ہیں اے بیٹے عبد القادر بتاؤ تم نے 17 پارے کہاں حفظ کیے ہیں، کس مکتب میں جا کر کے یاد کیے ہیں، کس مدرسے میں جا کر کے یاد کیے ہیں؟ حضور غوث اعظم کہتے ہیں اے امام صاحب سنو سنو، ہم نے یہ 17 پارے کسی مکتب میں جا کر کے یاد نہ کیے، کسی مدرسے میں جا کر کے یاد نہ کیے، بلکہ بات یہ ہے میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھی،
मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, अगर मेरी माँ मुझे दूध भी पिलाती थी, कुरान पढ़ के पिलाती थी। अल्लाह अकबर, कोई काम करती थी कुरान पढ़ के करती थी। मैं माँ के शिकम के अंदर था, मेरी माँ जो काम करती थी, यहाँ तक के शबो रोज मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि मैंने 17 पारे अपनी माँ के शिकम के अंदर याद कर लिए हैं। अपनी माँ के पेट के अंदर 17 पारे याद कर लिए। ऐ मेरे अजीजों, यहीं से एक नजरिया मिलता है, यहीं से एक फिक्र मिलती है। वो फिक्र और नजरिया ये है कि अगर बेटा माँ के शिकम के अंदर हो और माँ कुरान की तिलावत करे तो बेटा भी दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत करने वाला पैदा होगा। अगर माँ नमाजों की पाबंद हो तो बेटा भी नमाजों का पाबंद पैदा होगा। याद रखो मेरे अजीजों, जब बेटा शिकम के अंदर होता है, जब औलाद शिकम के अंदर होती है, तो याद रखो जो माँ करतूत करती है तो बेटे पे असर उसका पड़ता है। ऐ मेरे अजीजों, अपने घरों के अंदर यह ताकीद करें कि जब बीवी आपकी उम्मीद से हो तो उसे यह ताकीद करें कि जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करे, जितना हो सके तस्बीह हो तहलील पढ़े, जितना हो सके कुरान की तिलावत करे। ओ मेरे अजीजों, यही अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। माँ ने कहा, इल्म का शौक था, इल्म का जज्बा था। माँ से कहने लगे, ऐ वालिदा, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, इल्म का मामला था, माँ ने मना नहीं किया, कहा बेटे जाओ, चले जाओ, इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर। ओ मेरे अजीजों, अपने बेटों को कुरान की तालीम दिलाएं, अपने बेटों का रिश्ता कुरान से उनका जोड़ दें। इसलिए गौसे आजम खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इतना इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, माँ मैं इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटे चले जाओ। आपके सदरी के आस्तीन में माँ ने 40 अशरफियां सी दी, 40 अशरफियां रख दी। जब हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी जाने लगे, बचपने का आलम है, जब जाने लगे तो माँ ने ये एक दर्स दिया, बेटे कैसी भी मुसीबत पड़े लेकिन किसी हालत में तुझे झूठ नहीं बोलना है, किसी हालत में झूठ नहीं बोलना। आज तो इंसान अगर कारोबार करता है तो उससे कहा जाए झूठ न बोलो तो वो कहता है अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो माज़अल्लाह हमारा कारोबार नहीं चलेगा। ओ मेरे अजीजों, रिज्क का वादा रब ने किया है, वो तुम्हें रिज्क देगा। अरे जब वो परिंदों को भूखा नहीं सुला था, जब वो समंदर की मछलियों को भूखा नहीं रखता, तो तू तो अशरफुल मखलूकात है, तुझे वो कैसे भूखा रखेगा, तुझे कैसे वो भूखा रखेगा। अगर आज इंसान से कहा जाए झूठ ना बोलो तो कहते हैं कारोबार नहीं चलेगा, तिजारत नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज जो तुम्हारे पास बेसुकूनी है उसकी वजह यह है कि तुमने झूठ बोल करके पैसे कमाए, इसीलिए दिल मुर्दा होता चला जा रहा। अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को देखो, आप चले, माँ ने एक ताकीद की बेटे को कहा, बेटा किसी भी हालत में तुझे झूठ नहीं बोलना, चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए झूठ नहीं बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी काफिला के साथ चले, डाकुओं ने हमला किया, तमाम लोगों का माल लूटा। अल्लाह अकबर। एक डाकू ने हुजूर गौसे आजम से कहा, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 अशरफियां हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर गौसे आजम ने इतना कहा तो डाकू ने अपने सरदार को बताया, कहा एक छोटा सा बच्चा है जिससे मैंने पूछा कि तेरे पास कुछ है, तो उसने कहा था हाँ हमारे पास 40 अशरफियां हैं।
डाकू के सरदार ने कहा उस बच्चे को बुलाया जाए। जब हुजूर गौसे आजम आए, आने के बाद सरदार ने पूछा, ऐ बच्चे बता क्या तेरे पास कुछ है? तो बच्चे ने कहा था, हाँ हमारे पास 40 अशरफिया हैं। कहा वो अशरफिया कहाँ हैं? कहा मेरी सदरी की आस्तीन में है। जब उस सदरी की आस्तीन को फाड़ा गया तो 40 अशरफिया हुजूर गौसे आजम की सदरी से गिरी। अल्लाह अकबर। डाकू चेहरा देखता रह गया कि इतना छोटा सा ये बच्चा है और इतना सच बोल रहा है। डाकू ने कहा था, ऐ बेटे अगर तू चाहता तो ये अपनी अशरफियों को छुपा लेता, अपनी अशरफियों को अल्लाह अकबर छुपा करके तू वापस ले जाता, तू मुझसे झूठ बोल देता। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, ऐ डाकुओं के सरदार सुनो सुनो, मैं तुमसे झूठ तो बोल देता, मेरी अशरफियां भी बच जाती, मैं भी चला जाता, लेकिन जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझे ये ताकीद की थी, मेरी माँ ने मुझे ये दर्स दिया था, ऐ बेटे अब्दुल कादिर चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए हर हालत में तुझे सच का दामन मजबूती से पकड़े रहना है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने झूठ नहीं बोला। डाकुओं का सरदार सर पकड़ करके बैठ गया। या अल्लाह ये कैसा मामला है? ये इतना छोटा सा बच्चा है, ये माँ का इतना फर्माबरदार है, ये सच का दामन इतनी मजबूती से पकड़ा है। हम पूरी जिंदगी नाशुक्री करते रहे, हम पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर गुनाह करते रहे, हम पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहे। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी से कहा था, ऐ बेटे तुम इतनी छोटी सी उम्र में तुमने सच का दामन नहीं छोड़ा, हम इतने बड़े हो गए हैं हमेशा झूठ बोल रहे हैं। ऐ बेटे अब इतना कर कि मैं तेरे हाथ पे तौबा करना चाहता हूँ, आज के बाद कभी अल्लाह अकबर चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद किसी पे जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़ूंगा। वहीं पे हुजूर अब्दुल कादिर ने उन्हें तौबा कराई, और सिर्फ तौबा ही नहीं कराई बल्कि तमाम वलियों को विलायत का मर्तबा भी अता फरमा दिया है। ये गौसे आजम की जात है। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, हुजूर गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, आपने इल्म हासिल किया। जब मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इतना इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। हुजूर गौसे आजम मिंबर पे खिताब कर रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जो रूए जमीन पर औलिया थे उन्होंने अपनी गर्दनों को झुका दिया, जो आलमे अरवाह में थे उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया। जब हुजूर गौसे आजम ने ये ऐलान किया, मोइनुद्दीन चिश्ती खरासान की पहाड़ी में इबादत खुदा में मसरूफ हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जब आपके कानों से ये आवाज टकराई, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। ओ लोगों मैं पूछना चाहता हूँ, उस वक्त कोई मोबाइल का इंतजाम न था, उस वक्त कोई सोशल मीडिया का इंतजाम न था, उस वक्त अल्लाह अकबर कोई दुनियावी मामला जो चल रहे हैं एक दूसरे की आसानी के लिए वो उस वक्त मौजूद न थे। अल्लाह अकबर जो ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत हमारी फरियाद को नहीं सुन सकते हैं, जो ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत को अगर हम पुकारे तो वो हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। ऐ मेरे अजीजों जरा होश के नाखून लो, तासुब का आईना खटाओ, इमाम अहमद रजा के इश्क का चश्मा लगाओ और फिर देखो गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में है, गरीब नवाज खरासान की पहाड़ी में इबादत खुदा में मसरूफ हैं। जब ये आवाज कानों से टकराई, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, आप इतना झुके रुकू की हालत में आ गए। फिर आप कहते हैं, ऐ गौसे आजम आप कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, आपका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। बल्कि मोइनुद्दीन चिश्ती कहता है, बल कदमा का अला ऐनी वरासी, ऐ गौसे आजम आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है। जब ये मंजर बरेली के कलंदर ने देखा तो पुकार उठे, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम।